निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 79। नमस्कार, मैं सुनीता दीदी। बारात अभी अभी आ पहुंची है। साथ साथ रंजना, संतोष और माधवन भी बारातियों के संग शादी घर आ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। ज्योति को शायद मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं वहां जाती हूँ। आप तब तक इन बच्चों की ज्ञानमयी गप्पों का आनंद उठाइए। Oh, so many people. What a crowd. Yes, so many people. There must be around 400 people. 400? 400? Maybe 600. Do you know all of them? Not all. सबको नहीं पहचानती मैं। That means you know most of them. Yes, we know most of these people. See, they are looking at me. क्या मतलब? मतलब वो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी धोती देख रहे हैं। They are looking at my धोती. नहीं, तुम यहाँ नए हो ना, इसलिए देख रहे हैं। They are saying, who is this man? Are you sure not because of my dhoti? Of course not. You look nice in a dhoti. Look at that woman. Who is she? She is our sarpanch. Oh, Sarpanch. You have a woman Sarpanch. Is she a good Sarpanch? Yes, she is a good sarpanch. Ranjana, look there. Oh, Lata Mausi. Oh, where is Ranjana going? That is her Lata Mausi. She likes her very much. She has gone to meet her. When will Ajay come? Ajay? Who is Ajay? Ajay, the man who Jyoti is marrying. हाँ, Ajay, Dulha Raja. He will come now. Do you want sharbat or tea or coffee? Yes, please give me some sharbat. I will get some for you. Ranjana, where were you? I went to meet my Mausi. मेरी प्यारी लता मौसी। ये लो शरबत। नमस्ते। Namaste. Will you have tea or coffee or शरबत? I have some sharbat, thanks. Okay. Good. Who is he? He is Jyoti Didi's uncle. Very nice of him to talk to me in English. Madhvan भैया, can you see that man? That one, in a blue shirt. No, the man standing next to the door. Yes, I can see him. Who is he? He is a doctor. हमारे गांव के मशहूर डॉक्टर हैं। Oh, I see. Who is that woman? She is wearing a pink sari. Can you see her? She looks very angry. That is Jyoti Didi's aunt. She is always angry. हाँ, ज्योति दीदी की आंटी बहुत चिड़चिड़ी है। Madhavan भैया, can you see that small girl? She is wearing a red frock. Yes, I can see her. Who is she? She is Jyoti Didi's sister's daughter. Daughter मतलब बेटी, son मतलब बेटा। हाँ रे। See Madhavan भैया, that is Jyoti Didi's father. Can you see that man? Jyoti Didi is his daughter. Ranjana, you know a lot of English words. And who is that man? That is Jyoti Didi's uncle. Jyoti Didi's father's brother. Madhavan भैया, come soon. Ranjana, where are you taking me?
चलिए जल्दी. But wait. अरे wait. This is Madhavan Bhaiya. He helps us to learn English. And this is Mrs. Sudha Singh, our English teacher. Namaste, Mrs. Singh. Namaste. Santosh and Ranjana are speaking good English now. Both of them are smart children. Yes, of course. They are teaching me Hindi because I don't know Hindi. Nice meeting you. Same here. Bye. तो माधवन भैया, अच्छी है ना हमारी टीचर? Yes, you have a nice English teacher. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको आसानी रहे. Sweet. मतलब मीठा. Salty. मतलब नमकीन या खारा. Sour. मतलब खट्टा. Hot. मतलब तीखा या गरम. Cold. मतलब ठंडा. The coffee is hot. The water is cold. Full. मतलब भरा हुआ. Empty. मतलब खाली. The box is full. The bucket is empty. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा. बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी. आज के पाठ में तुमने मीठा, तीखा, खट्टा और नमकीन, इनके लिए अंग्रेजी शब्द सुने. पहले उनका अभ्यास करेंगे. मैं एक एक शब्द बोलूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी. फिर उसका अंग्रेजी शब्द तुम मेरे बाद एक साथ बोलना, लेकिन हाँ, एकदम धीमी आवाज में. सिर्फ अंग्रेजी शब्द कहना है, ठीक है? स्वीट मतलब मीठा. तुम कहो स्वीट. सॉल्टी मतलब नमकीन. अब मेरे बाद बोलो सॉल्टी. सार मतलब खट्टा. बोलो तो सार. हॉट मतलब तीखा और हॉट मतलब गरम भी. कहो हॉट. कहा ना? बहुत खूब. अब कुछ अलग तरीके से अभ्यास करते हैं. मैं एक खाने का नाम लूंगी. उसका स्वाद कैसा होता है ये तुम्हें बताना है, लेकिन अंग्रेजी में, ठीक है? अगर मैं कहूं जलेबी तो तुम कहोगे स्वीट, क्योंकि जलेबी मीठी होती है ना. आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं. सबको एक साथ बोलना है, लेकिन धीमी आवाज में, ठीक है? खाने का नाम सुनो और अंग्रेजी में बताओ कि उसका स्वाद कैसा है. नींबू. सार. ऐसे ही कहा ना? सार मतलब खट्टा. नींबू खट्टा ही होता है ना. अब दूसरा शब्द मिर्च. हॉट. सही कहा ना? हॉट मतलब तीखा, लेकिन ध्यान रहे हॉट का मतलब गरम भी होता है. अब लड्डू. स्वीट बोला ना? स्वीट मतलब मीठा. अब नमक का स्वाद बताओ. नमक. सॉल्टी. यही कहा ना? सॉल्टी मतलब नमकीन. गुड. और क्या सीखा हमने आज के पाठ में? और 2 नए शब्द सीखे हैं.
फुल मतलब भरा हुआ और एम्प्टी मतलब खाली। फुल, एम्प्टी जैसे और विलोम शब्द भी तुम जानते हो, जैसे हॉट, कोल्ड, फिर बिग, स्मॉल। तो अब मैं विरोधी अर्थ वाले 2 शब्द कहूंगी, उनका प्रयोग करके तुम्हें अंग्रेजी में 2 वाक्य बनाने हैं। अगर मैं कहूं बिग और स्मॉल तो वाक्य ये हो सकते हैं, द एलिफेंट इज बिग, द कैट इज स्मॉल। समझ गए? चलो अब घंटी बजते ही एक बच्चा खड़ा होगा। मैं 2 शब्द बोलूंगी, ध्यान से सुनो और उन शब्दों का प्रयोग करके अंग्रेजी में 2 वाक्य तैयार करो। शब्द सुनो, हॉट, कोल्ड। The tea is hot. The शरबत is cold. ऐसे ही वाक्य तैयार किए ना? गुड। अब दूसरा कोई? तुम ये 2 विलोम शब्दों का प्रयोग करो। फुल, एम्प्टी मतलब भरा हुआ और खाली। फुल, एम्प्टी। The glass is full. The cup is empty. ऐसे वाक्य बनाए ना? अब दूसरा बच्चा खड़ा होगा। दो वाक्य तैयार करो। तुम्हारे लिए शब्द हैं बिग, स्मॉल। सही वाक्य तैयार किए ना? ऐसे बहुत से और वाक्य तुम बना सकते हो। अब अगले 15 मिनट टीचर जी तुमसे अभ्यास करवाएंगे। स्वीट, सॉल्टी, हॉट, सार इन शब्दों का प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य तैयार करनी है। वैसे ही फुल, एम्प्टी ऐसे विलोम शब्दों का प्रयोग करके 2-2 वाक्य भी तैयार करने हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब